بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن و رات قیام رہا۔ آپ بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں یا یوں کہا مجھ کو یاد نہیں۔ اور ان حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک سرد رات میں مقام زجنان پر اذان دی، پھر فرمایا کہ لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو، اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی کریم مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کہہ دے کہ لوگوں اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔ میں نے رسول کریم کو ابتا میں دیکھا کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ کو نماز کی خبر دی، پھر بلال رضی اللہ عنہ برچی لے کر آگے بڑھے اور اسے آپ کے سامنے بطور سترہ مقام ابتا میں گاڑ دیا اور آپ نے اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھائی۔ انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی ان کے منہ کے ساتھ ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا۔ ہم نبی کریم کے ساتھ نماز میں تھے۔ آپ نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو، نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز کی تکبیر ہو تو جب تک مجھے دیکھ نہ لو کھڑے نہ ہو اور آہستگی کو لازم رکھو۔ شیبان کے ساتھ اس حدیث کو یحییٰ سے علی بن مبارک نے بھی روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ایک دن حجرے سے باہر تشریف لائے، اقامت کہی جا چکی تھی اور صفیں برابر کی جا چکی تھیں۔ آپ جب مسئلے پر کھڑے ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ تکبیر کہتے ہیں، لیکن آپ واپس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ دوبارہ تشریف لائے تو سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے غسل کیا تھا۔ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفیں سیدھی کر لی تھیں۔ پھر رسول کریم تشریف لائے اور آگے بڑھے، لیکن حالت جنابت میں تھے، مگر پہلے خیال نہ رہا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر آپ واپس تشریف لائے تو آپ غسل کیے ہوئے تھے اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نبی کریم کی خدمت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، قسم خدا کی سورج غروب ہونے کو ہی تھا کہ میں اب عصر کی نماز پڑھ سکا ہوں۔ آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں نے بھی تو نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ بطحان کی طرف گئے، میں آپ کے ساتھ ہی تھا۔ آپ نے وضو کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی۔ سورج ڈوب چکا تھا، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز کے لیے تکبیر ہو چکی تھی اور نبی کسی شخص سے مسجد کے ایک گوشے میں چپکے چپکے کان میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ نماز کے لیے جب تشریف لائے تو لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ثابت بنانی سے ایک شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا جو نماز کے لیے تکبیر ہونے کے بعد گفتگو کرتا رہے۔ اس پر انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تکبیر ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک شخص نبی کریم سے راستہ میں ملا اور آپ کو نماز کے لیے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا۔ رسول کریم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ جماعت میں نہ شریک ہونے والے لوگ اتنی بات جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھے قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا دو عمدہ کھر ہی مل جائیں گے تو یہ عشاء کی جماعت کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں۔
रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जमात के साथ नमाज अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखती है। आप फरमाते थे कि जमात से नमाज तन्हा नमाज पढ़ने से 25 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखती है। नबी ने फरमाया कि आदमी की जमात के साथ नमाज घर में या बाजार में पढ़ने से 25 दर्जा ज़्यादा बेहतर है। वजह यह है कि जब एक शख्स वज़ू करता है और इसके तमाम आदाब को मलहूज़ रखकर अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर मस्जिद का रास्ता पकड़ता है और सवा नमाज के और कोई दूसरा इरादा इसका नहीं होता, तो हर कदम पर इसका एक दर्जा बढ़ता है और एक गुनाह मुआफ़ किया जाता है। और जब नमाज से फारिग हो जाता है तो फरिश्ते इस वक्त तक उसके लिए बराबर दुआएं करते रहते हैं जब तक वो अपने मसले पर बैठा रहे। कहते हैं, अल्लाह इस पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, ऐ अल्लाह इस पर रहम कर, और जब तक तुम नमाज का इंतज़ार करते रहो गोया तुम नमाज ही में मशगूल हो। आपने फरमाया कि जमात से नमाज अकेले पढ़ने से 25 दर्जा ज़्यादा बेहतर है, और रात दिन के फरिश्ते फजर की नमाज में जुमा होते हैं। फिर अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अगर तुम पढ़ना चाहो तो सूरत बनी इसराइल की ये आयत पढ़ लो, ने कुरान अल फजर कान मशहूदा, यानी फजर में कुरान पाक की तिलावत पर फरिश्ते हाजिर होते हैं। जमात की नमाज अकेले की नमाज से 27 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखती है। एक मर्तबा अबू दरदा आए, बड़े ही खफा हो रहे थे। मी ने पूछा कि क्या बात हुई जिसने आपको गज़बनाक बना दिया। फरमाया, खुदा की कसम, हज़रत मोहम्मद की शरीयत की कोई बात अब मैं नहीं पाता, सवा इसके कि जमात के साथ ये लोग नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज में सवाब के लिहाज से सबसे बढ़कर वो शख्स होता है जो मस्जिद में नमाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दूर से आए, और जो शख्स नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है और फिर इमाम के साथ पढ़ता है, इस शख्स से अजर में बढ़कर है जो पहले ही पढ़कर सो जाए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, एक शख्स कहीं जा रहा था, रास्ते में उसने कांटों की भरी हुई एक टहनी देखी, बस उसे रास्ते से दूर कर दिया। अल्लाह ताला सिर्फ उसी बात पर राज़ी हो गया और इसकी बख्शिश कर दी। शुहदा 5 कस्म के होते हैं, तुम में मरने वाले, पीठ के आर्जे, हैज़े वगैरह में मरने वाले, और डूबकर मरने वाले, और जो दीवार वगैरह किसी भी चीज़ से दबकर मर जाए, और खुदा के रास्ते में जिहाद करते हुए शहीद होने वाले। और आपने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान देने और पहली सफ में शरीक होने का सवाब कितना है, और फिर इसके सिवा कोई चाराकार ना हो कि कुरा डाला जाए, तो लोग उनके लिए कुरा ही डाला करें। और अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि ज़हर की नमाज के लिए सोयरा जाने में क्या सवाब है, तो उसके लिए एक दूसरे पर सक़त ले जाने की कोशिश करें। और अगर ये जान जाएं कि इशा और सुबह की नमाज के फ़िज़ाइल कितने हैं, तो घुटनों के बल घसीटते हुए उनके लिए आएं। नबी करीम ने फरमाया, ए बनो सलमा वालो, क्या तुम अपने कदमों का सवाब नहीं चाहते? मुझे यहया बिन अयूब ने खबर दी, कहा कि मुझसे हमीद तवील ने बयान किया, कहा कि मुझसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि बनो सलमा वालों ने यह इरादा किया कि अपने मकान जो मस्जिद से दूर थे छोड़ दी और उन हज़रत के करीब आ रही, ताकि नमाज बाजमात के लिए मस्जिद नबवी का सवाब हासिल हो। लेकिन उन हज़रत को मदीना का उजार देना बुरा मालूम हुआ। आपने फरमाया, किया तुम लोग अपने कदमों का सवाब नहीं चाहते? मुजाहिद ने कहा, सूरत यासीन में वासाराम से कदम मुराद हैं, यानी ज़मीन पर चलने से पाँव के निशानात। नबी करीम ने फरमाया कि मुनाफिकों पर फजर और इशा की नमाज से ज़्यादा और कोई नमाज भारी नहीं, और अगर इन्हें मालूम होता कि उनका सवाब कितना ज़्यादा है और चल ना सकते, तो घुटनों के बल घिस कर आते। और मेरा तो इरादा हो गया था कि मौज़ से कहूँ कि वो तकबीर कहे, फिर मैं किसी को नमाज पढ़ाने के लिए कहूँ और खुदा की चिनगारियाँ लेकर उन सब के घरों को जला दूँ जो अभी तक नमाज के लिए नहीं निकले। आपने फरमाया, जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम दोनों अजान दो और इकामत कहो, फिर जो तुम में बड़ा है वो इमाम बने। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मलाइका तुम में से इस नमाजी के लिए इस वक्त तक यूं दुआ करते रहते हैं जब तक नमाज पढ़ने के बाद वो अपने मसले पर बैठा रहे कि ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर, ऐ अल्लाह इस पर रहम कर। तुम में से वो शख्स जो सिर्फ नमाज की वजह से रुका हुआ है, घर जाने से सवा नमाज के और कोई चीज़ इसके लिए माने नहीं, तो उसका ये सारा वक्त नमाज ही में शुमार होगा। आपने फरमाया कि 7 तरह के आदमी होंगे जिनको खुदा उस दिन अपने साया में जगह देगा, जिस दिन उसके साया के सवा और कोई साया ना होगा। अव्वल इंसाफ करने वाला बादशाह, दूसरे वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में जवानी की उमंग से मसरूफ़ रहा, तीसरा ऐसा शख्स जिसका दिल हर वक्त
मस्जिद में लगा रहता है। चौथे, दो ऐसे शख्स जो अल्लाह के लिए बाहम मोहब्बत रखते हैं और उनके मिलने और जुदा होने की बुनियाद यही ललई मोहब्बत है। पांचवां, वो शख्स जिसे किसी बाइज्जत और हसीन औरत ने बुरे इरादा से बुलाया लेकिन उसने कह दिया कि मैं खुदा से डरता हूँ। छठा, वो शख्स जिसने सदका किया मगर इतने पोशीदा तौर पर कि बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई कि दाहिने हाथ ने किया खर्च किया। सातवां, वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या रसूल अल्लाह ने कोई अंगूठी पहनी है? आपने फरमाया कि नहीं। एक रात इशा की नमाज में आपने आधी रात तक देर की। नमाज के बाद हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, लोग नमाज पढ़कर सो चुके होंगे और तुम लोग इस वक्त तक नमाज ही की हालत में थे जब तक तुम नमाज का इंतजार करते रहे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जैसे उस वक्त में आपकी अंगूठी की चमक देख रहा हूँ, यानी आपकी अंगूठी की चमक का समय मेरी आंखों में है। आपने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद में सुबह शाम बार बार हाजिरी देता है, अल्लाह ताला जन्नत में इसकी मेहमानी का सामान करेगा। वो सुबह शाम जब भी मस्जिद में जाए। नबी करीम का गुजर एक शख्स पर हवा। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा कि मुझसे अब्दाल रहमान बिन बशर ने बयान किया। कहा कि हमसे बहस बिन असद ने बयान किया। कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया। कहा कि मुझे साद बिन इब्राहिम ने खबर दी। कहा कि मैंने हिफ्स बिन आसिम से सुना। कहा कि मैंने कबीला अजद के एक साहब से जिनका नाम मालिक बिन बहीना रजी अल्लाह अन्हा था सुना कि रसूल अल्लाह की नज़र एक ऐसे नमाजी पर पड़ी जो तकबीर के बाद 2 रकात नमाज पढ़ रहा था। आन हजूर जब नमाज से फारिग हो गए तो लोग उस शख्स के इर्द गिर्द जुमा हो गए और आन हजूर ने फरमाया, किया सुबह की 4 रकतें पढ़ता है। किया सुबह की 4 रकतें हो गईं। इस हदीस की मुताबिक गंदर और माज ने शोबा से की है जो मालिक से रिवायत करते हैं। इब्न इसहाक ने साद से, इन्होंने हिफ्स से, वो अब्दुल्ला बिन बहीना से और हमाद ने कहा कि हमें साद ने हिफ्स के वासिता से खबर दी और वो मालिक के वासिता से। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर थे। हम ने नमाज में हमेशगी और इसकी तज़ीम का जिक्र किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम के मरज़ अलमूत में जब नमाज का वक्त आया और अजान दी गई तो फरमाया कि अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। उस वक्त आपसे कहा गया कि अबू बकर बड़े नरम दिल हैं, अगर वो आप की जगह खड़े होंगे तो नमाज पढ़ाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने फिर वही हुक्म फरमाया और आपके सामने फिर वही बात दोहरा दी गई। तीसरी मर्तबा आपने फरमाया कि तुम तो बिल्कुल यूसुफ की साथ वाली औरतों की तरह हो कि दिल में कुछ है और जाहिर कुछ और कर रही हो। अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। आखिर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। इतने में नबी करीम ने मरज में कुछ कमी महसूस की और 2 आदमियों का सहारा लेकर बाहर तशरीफ ले गए। गोया में उस वक्त आपके कदमों को देख रही हूं कि तकलीफ की वजह से जमीन पर लकीर करते जाते थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा ने ये देखकर चाहा कि पीछे हट जाएं, लेकिन आन हजूर ने इशारा से इन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा। फिर उनके करीब आए और बाजू में बैठ गए। जब आमिश ने ये हदीस बयान की, उनसे पूछा गया कि क्या नबी करीम ने नमाज पढ़ाई, और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा ने आपकी अक़तदा की और लोगों ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा की नमाज की अक़तदा की। हजरत आमिश ने सर के इशारा से बतलाया कि हूँ। अबू दाऊद तयालसी ने इस हदीस का एक टुकड़ा शोबा से रिवायत किया है और शोबा ने आमिश से और अबू मुआविया ने इस रिवायत में ये ज़्यादा किया कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा के बाएं तरफ बैठे। बस अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। जब नबी करीम बीमार हो गए और तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई तो आपने अपनी बीवियों से इसकी इजाज़त ली कि बीमारी के दिन मेरे घर में गुजारें। इन्होंने उसकी आपको इजाज़त दे दी। फिर आप बाहर तशरीफ ले गए। आपके कदम ज़मीन पर लकीर कर रहे थे। आप उस वक्त अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा और एक और शख्स के बीच में थे, यानी दोनों हजरात का सहारा लिए हुए थे। उबैदुल्लाह रावी ने बयान किया कि मैंने ये हदीस हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से बयान की, तो आपने फरमाया उस शख्स को भी जानते हो जिनका नाम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नहीं लिया। मैंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया कि वो दूसरे आदमी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा थे।